Okay, good morning, everyone. So, yes, we will be having the lecture at the same time. So, the link is going to remain same. Somebody is asking why it is saying recurring. So, you don't have to see the link. The link is going to remain same. Every time we will be having a class, you just have to click the same link. Okay. So, that's how the recurring means. Now, yesterday, in the last class, we have done molecular formula, empirical formula type of concept. Okay, so I will write 2 3 example and we will try to solve them. Okay, of uh, empirical formula and let's say molecular formula. So let's say one question. A compound on analysis gave following percentage composition. Carbon, hydrogen, oxygen. 54.54%, 9.09% and 36.36%. ठीक है. If vapor density of the compound found to be 44, find molecular formula. ठीक है, ये क्वेश्चन है. You have to find empirical formula. फिर यहाँ vapor density दे रखी है. Then you have to find molecular formula. Solve. बोलो बेटा. सर वो परसेंटेज एक बार रिपीट कर सकते हो, दिख नहीं रहा है यहाँ से. Okay, 54.54, 9.09, 36.36. ओके सर. Molecular mass is 88 बेटा. फॉर्मूला बताना है आपको. Vapor density is 44, so you can directly say okay, molecular mass is going to be 88. But first you have to calculate empirical formula, and from there molecular formula you have to find.
ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो बस इसमें करना यही है जो हमने पहले बताया, इफ वी हैव टू डू। तो अगर क्विकली देखना हो तो हम सीधे इसमें डिवाइड कर दें 12 को, राइट, इनके एटॉमिक मास से। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप था 54.54 डिवाइड बाई 12, ये होगा 9.09 डिवाइड बाई, है ना, 1, एंड ये 36.36 डिवाइड बाई 16। इनको सॉल्व करना है हमें। तो लेट्स से व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व, तो 16 into 2, 32, and this is going to be 4. So 16 into 2, 2, then 83, 5, and 36, that's a 2, ऐसा कुछ। ये हो गया 9.09, and this is going to be 12 into 4, then 6, so हाँ 5, and then you are going to say again those 65 से 54, फिर उसके बाद हो गया आपका 4, ऐसा कुछ जो भी है। Now in this part you can see this is the minimum number, so you will divide. This is 2.25. 2.25 is double of like 4.54 is double of 2.25, so this will come 2, this will come 4, this will come 1. So empirical formula is going to be C2H4O, C2H4O. Now what is the mole empirical mass? So this is 2 into 12, 24, 2 into 12 plus 4 into 1 plus 16. So this is over here 24 plus 4, 28, 28 plus 16, 44. So molecular formula is going to be, अच्छा empirical mass और molecular mass से n निकाल सकते हैं, तो n equals to molecular mass divided by empirical mass. So molecular mass क्या है, 2 into Weber density डिवाइड बाई यहाँ पे ये 44, ये कट गया, तो इससे n की वैल्यू आ गई 2, and from here we can write what is molecular formula. तो empirical formula का ट्वाइस, तो ये हो जाएगा C4H8O2। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, है ना। आयरन ऑक्साइड contains 70% iron. Find its empirical formula. Its empirical formula. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। एक आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड का मतलब आयरन और ऑक्सीजन दो ही चीजें हैं, और उसमें 70% आयरन है। Then you can calculate how much oxygen is going to be there, and you have to find empirical formula.
यस बोलो बेटा। सर आयन का एटॉमिक वेट क्या है? 56। थैंक यू सर। यस सर, आपने मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू EF2 करके क्या लिखा था अभी लेफ्ट साइड पे? बेटा कल रिवाइज किया आपने नोट्स? एक्चुअली नोट्स सर रिवाइज किया थोड़ा आपने? हाँ, एक्चुअली सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो पुराने ही देख रहा हूँ अभी। जब भी आपको कोई क्लास पढ़ाई जाती है तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो देखना है पहले। ओके सर। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला ये था कि हमें निकालना है कि रिपीटेशन कितना होगा, है ना? तो इसलिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन। एन की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, तो वो 2 लिख दिया। एक है ओके मास सर। और एक है फॉर्मूला, दोनों डिफरेंट थिंग है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज 88, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट 88। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कार्बन हाइड्रोजन होंगे उसमें कुछ। सो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड एन वैल्यू। ओके सर, और एन क्या है सर इधर? फिर वही बात है, जब रिवाइज नहीं करके आओगे तो यही दिक्कत होगी। एन इक्वल्स टू है भाई, जैसे मान लो ग्लूकोज वाला एग्जांपल था C6H12O6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, बट अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो वो आएगा 1:2:1। ये याद है? हाँ। हाँ, तो इस C6H12O6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, CH2O to पावर 6। ये है n। कितना ओके आपने सर। कॉमन हटा दिया, ये निकलेगा कैसे? इसका मास देख लो, इसका मास देख लो, ये क्या है? मल्टीपल ही तो है, 6 टाइम हाँ। मल्टीपल ऑफ CH2O। तो इसका मास है 180, इसका मास है 30। डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास इज गोइंग टू गिव n वैल्यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर Fe2O3 आ रहा है उनका आंसर सही है। ठीक है, और जिनका आंसर कुछ और आ रहा है FeO या Fe3O4, वो गलत हो सकता है। ठीक है, गलत ही है मतलब। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ लेट्स से Fe ऑक्सीजन 70%, 30%, 70/56। तो ये 8 से कट होगा, सॉरी 7 से कट होगा, 10 डिवाइड बाई 8। ये 30 डिवाइड बाई 16, तो ये 15/8। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये है। इससे डिवाइड करो, इससे इसी को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15/8 इंटू 8/10। उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, कट हो गया, तो इससे आया 1.5। अब ये आ गया जो रेशियो फ्रैक्शन में। तो मैंने बोला था जब आपका रेशियो रिलेटिव रेशियो फ्रैक्शन में आएगा देन यू विल मल्टीप्लाई बाय ए सुटेबल फैक्टर। सो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो आ गया Fe2O3। ठीक है, यहाँ कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लेना मना है। अगर आपने वैल्यू लिखी हुई है ऐसे 1 ये आएगा आपका 25 और ये आएगा 1.875। तो अगर आपने अप्रोक्सीमेशन कहीं ले लिया है, इसको 1 लिख लिया, इसको कुछ और लिख लिया, 2 लिख लिया, तो कुछ गलत आ सकता है। ठीक है, will not take too much approximation. चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैं चाहता हूं जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो अब ये लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करें कि क्यों नहीं हो रहे हैं। कैलकुलेशन अगर नहीं हो रही है then they can use calculator but they should get the answer.
परसेंटेज दे रखी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 40.687, 5.085, 54.228, ठीक है। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, if molecular mass is 118, find molecular formula। चलो बताओ भाई, ये वैल्यूज दे रखी है, molecular mass दे रखा है 118, you have to solve and you have to get the answer। सर मेरा आंसर आ गया, पर मैं चैट पे भेज रहा था आपके पास इसमें मेरे में दिखाई नहीं रहा कि आपके पास आ रहा है, तो एक बार आप चेक करेंगे क्या आ रहा है क्या। मैं 3-4 बार सेंड किया पर उसमें दिख नहीं रहा है कुछ सर। हाँ आया है, ठीक है। ठीक है, लगभग सबके आंसर आ गए। तो C4H6O4 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अगेन इसमें भी हमें ऐसी फ्रैक्शन मिल रहा है 40.687 डिवाइड बाय 12 अगर हम करेंगे
5.085 divided by 1 and 54.228 divided by 16. So this value will come around 3.4. This is 5.08 and this is also 3.4. When you will, let's say ये सबसे वैल्यू नंबर है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1, ये 1.5, ये 1. So you will multiply by suitable factor, तो ये 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा 2. ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया आपका C2H3O2 एंड इसका एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 32 तो 59. From here we can calculate n value. So 118 divided by 59, molecular mass divided by empirical mass, so it will come 2. So molecular formula is going to be C2H3O2 times 2, so that is C4H6O4. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला. ठीक है, तो आई थिंक अब एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे. ठीक है, जो हमने होमवर्क में दे रखा है. लेट्स मूव टू अनदर पार्ट. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है वो पूछ ले, है ना, जिसको यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है. बोलो बेटा. सर सर कार्बन का तो सर 3.323 आ रहा था, 3.4 तक हमने कैसे लिया अज्यूम? तुम फिर से कैलकुलेट करो. 3.38 समथिंग आएगा. ठीक है, 3.389 ऐसा कुछ, 3.39 ऐसा कुछ आएगा. तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है. चलो नेक्स्ट पार्ट जो है अब आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेसिस है. ठीक है, पूरे मतलब केमिस्ट्री में जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री के लिए यू नीड टू हैव बैलेंसिंग, you need to have a balanced chemical reaction. So पहली बात तो हम यहाँ समझेंगे balancing of chemical reaction. I hope कि आपको बैलेंस करना आता होगा. तो चलो देखते हैं कि भाई बैलेंसिंग करना आता है या नहीं आता है. तो मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बैलेंस करना है. NH3 plus H2O in presence of, let's say, gives NO plus H2O. इसको बैलेंस करो. ये पहला एग्जांपल है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में. दूसरा एग्जांपल है C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O. Balance these two reactions. Sorry, यहाँ पे O2 है. NH3 plus O2 gives NO plus H2O. नहीं, अप्रोक्सीमेशन नहीं है वो, मैंने लिख दिया है 3.34. जैसे हमने राउंड ऑफ किया है, we have done the round off. It is not approximation. Good, Ayush. नहीं, याद वाले नहीं बताने हैं, है ना, क्योंकि सारी रिएक्शन याद नहीं होगी तो आपको सॉल्व ही करना है.
try to balance. ठीक है, ये कुछ अच्छे मैंने रिएक्शन दे रखी है, सबको बैलेंस करो। ठीक है, कई लोगों के आंसर ठीक आते जा रहे हैं, वेरी गुड। बट मैं चाहता हूँ कि सबके आ रहे हैं या नहीं, वो देखते जाओ आप लोग आपस में कि आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको बैलेंस करना है। तो बेस्ट चॉइस यही होती है कि जो सिंगल सिंगल में हो वो आसानी से बैलेंस हो पाता है, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक जितने भी नंबर यहाँ आएंगे उतने ही नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने 1 1 1 लिखा तो 1 ही रह गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, इस 3 हाइड्रोजन को 3 बनाने के चक्कर में हम यहाँ 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि अभी फ्रैक्शन में आ सकती है वैल्यू, फिर वी विल मल्टीप्लाई समथिंग। तो अब ये नाइट्रोजन इज बैलेंस 1, हाइड्रोजन इज 3, हियर आल्सो हाइड्रोजन इज 3। अब ऑक्सीजन रह गया, तो ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है प्लस, और यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन है, तो इससे आ गया ये ऑक्सीजन 5/2, ये ऑक्सीजन आया 5/2। अगर हमें O2 देखना है तो कितना हो जाएगा 5/4, है ना, यहाँ 2 लिखा है ना, 5/4 इंटू 2 क्या होगा 5/2। तो अब ये कुछ फ्रैक्शन में आ गई आपकी बैलेंस रिएक्शन,
कोई बात नहीं, इसको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4NH3 प्लस 5O2 4NO 4 into 3/2 6। तो जिनका नहीं आया वो यहाँ देख सकते हैं, यू कैन बैलेंस रिएक्शन लाइक दिस, एंड फिर अगर कुछ फ्रैक्शन आ रहा हो तो मल्टीप्लाई कर लो किसी भी सुटेबल फैक्टर से। फिर ऐसे ही यहाँ पे 3 कार्बन है, तो सबसे पहले 3 carbons we can see over here, so what will happen, 3CO2, मतलब ये आ जाएगा क्योंकि ये इसका एक ही सोर्स है। हाइड्रोजन 8 है, इसका सोर्स यही है तो 4। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हुए, 3 into 2 6 प्लस 4 into 1 10, 10 ऑक्सीजन हो गए, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो O2 मिलेगा, तो यहाँ आ गया 5O2। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। तो जहां कुछ नहीं लिखा होता है वो वहां 1 है, ठीक है। तो C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2। यहाँ देखते हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, KCl यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए 3/2। अब हमें पता है ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सुटेबल फैक्टर 2 2 3। चलो ये 3 हो गए, अभी 3 तक आंसर मुझे मिल चुके हैं, अभी बाकी 2 और करने हैं। बोलो बेटा। सर मुझे फर्स्ट में 2NH3 प्लस 5 द O आया है, द 2NO और 3H2 आया। 5O नहीं लिखना है ना, O2 लिखना है ना, तो अच्छा 5/2 सॉरी लिख सर, लोगे उसको। हाँ ठीक। फोर्थ का क्या है, फोर्थ का आएगा, हाँ ठीक है, सोहम आंसर। शुभजीत बेटा आपने फिफ्थ में कुछ गड़बड़ की है, कुछ तो है गड़बड़, है ना, क्रॉस चेक। बोलो बेटा अभिनव। सर वो Al3C4 ही है Al3C4, हाँ। सर, लेकिन वो वैलेंसी एक्सचेंज होएगा तो फिर वो Al4C3 होएगा ना। क्यों, चलो तुम्हारी बात ही सुन लेते हैं, बताओ। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है और कार्बाइड का 4 है, फिर एक्सचेंज होते वक्त तो Al4C3 होएगा ना। हाँ तो लिखा तो Al, अच्छा हाँ, राइट, करेक्ट, ये करेक्ट Al4C3 लिखना था मुझे, है ना, Al4C3। थैंक यू सर। बोलो बेटा अतुल। ठीक है, तो वही बहुत सारे लोगों के आंसर सही आए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि सबको वैलेंसी आती है, तो ये अच्छी बात है। कोई है जिसको हाजिर जिसको वैलेंसी में प्रॉब्लम है? किसी को भी नहीं है, वेरी गुड। किसी को है तो दे कैन शेयर, है ना। पहली बात तो ये समझ लो कि जब तक आप लोग थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, जब तक आंसर तब तक नहीं आएगा फिर, ठीक है। सो डोंट हेजिटेट, इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, यू हैव टू आस्क, ठीक है, तभी इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लिया, नाइट्रोजन में 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लिया, बस हो गया बैलेंसिंग। देख लो यहाँ कितने ऑक्सीजन और है, तो 2 into 3 तो ये हो गया 6। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो हाइड्रोजन बैलेंस होंगे, तो बस 6 + 6 12 होते हैं, तो यहाँ पे भी 12। सो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ पे Al4C3 ही लिखना था मुझे, आई थिंक ध्यान नहीं दिया। तो ये 4 जो है यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, बस हो गया। बस इसको बैलेंस कर लेना है वाटर को। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने ऑक्सीजन है ये, 3 into 4 12 ऑक्सीजन है, सो 12 यू शुड राइट, बस। तो ये तो हो गई बैलेंसिंग। अब समझते हैं अब इस बैलेंसिंग से क्या होगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है, हमेशा जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो प्रोडक्ट में हमेशा CO2 और H2O ही मिलेगा। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विल गिव CO2 and H2O। ठीक है, तो लेट्स से अब जैसे ये जो हमने बैलेंसिंग सीख ली, उससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लेट्स से इन जनरल फॉर ए balanced chemical reaction, AA plus BB gives CC plus DD. A, B, C, D are called stoichiometric coefficient of A, B, C and D respectively. ठीक है, तो जैसे अगर हमने एग्जांपल अभी देखा था कि अगर हमें लिखा हो 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 4, 5, 4, 6। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 4 molecule of NH3 will react with 5 molecule of O2 to form
4 molecule of NO and 6 molecule of H2। तो ये रिलेशन है। ये जो स्टोकियोमेट्री आएगी इसका मतलब ये एक रिलेशन बता रहा है कि इसके 4 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसके 4 मॉलिक्यूल और इसके 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मीनिंग है एक्चुअली। कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर हमने निकाल ली तो हम ये रिलेशन बता सकते हैं कि भाई अगर हमें 4 मॉलिक्यूल NH3 की चाहिए तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की चाहिए। ठीक है, अब ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको बैलेंसिंग आ गई तो वो आसानी से ये बात लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं। और जिसको ये रिलेशन समझ में आ गया उसको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इतना आसान है। जैसे आप बैलेंस रखो करो रिएक्शन को, उस बैलेंसिंग में देख लो कि भाई यहाँ पे स्टोकियोमेट्री क्या है। जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां 1 है ना। जैसे कभी कभी लिखा होता है NH3 तो केवल क्या हो गया 1। एनीवे, तो 4 5 4 6 and this means 4 means that means 4 molecule of NH3 will react with 5 molecule of O2 to form 4 molecule of NO and 6 molecules of H2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है then they can ask। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन हमें पता है सो वी कैन बिल्ड रिलेशन बिटवीन मोल्स। भाई जितने भी मॉलिक्यूल है उनसे सबसे Na को मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सही रहेगा, रेशियो है ना, ये तो एक रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और 4 मोल ऑफ NH3 reacts with 5 mole of O2 to form 4 mole of NO and 6 mole of है ना H2। 4 मोल का मतलब क्या है एक्चुअली में 4 इंटू Na। यहाँ पे 6 का मतलब क्या है 6 इंटू Na, सॉरी 5 इंटू Na। यहाँ पे कितना है 4 इंटू Na और ये क्या है 6 इंटू Na। सो वी हैव मल्टीप्लाइड Na ओवर हियर, सो वी विल गेट दिस। ठीक है, ये समझने के लिए बस। तो ये जो लास्ट वाला रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो ये है आपकी मोल मोल एनालिसिस। मतलब अगर मान लो मैंने कोई अननोन दे दिया, मैंने एक अननोन दे दिया मान लो NH3, लेकिन मैंने नोन क्या दिया O2।
अब मैंने बोला कि बताओ अगर NH3 जो है कंप्लीटली रिएक्ट करता है O2 से और O2 के 10 मोल है, O2 के 10 मोल दे रखे हैं, ठीक है, तो NH3 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? तो हमें सीधे रिलेशन पता है भाई, 4 से 5 करते हैं तो 10 से कितने करेंगे? 8 करेंगे, तो बस you will be getting the answer is 8. Okay, so over here we know that, okay, what is the stoichiometry over here? 5 and 4. ठीक है, the stoichiometry of oxygen over here is 5, stoichiometry of NH3 is 4. So we can build the relation. If 5 is reacting with 4, then 10 will be reacting with 8. So that's how we can calculate anything. Let's say we know one information about one, we can say information about all the other reactant as well as product. So if somebody is saying ki, if I have taken, let's say, only 1 mole of NH3, how many moles of H2O will be formed? So we will say, okay, 4 is forming 6, so 1 will be forming 6 by 4. Answer is going to be 3 by 2 or 1.5. So all these relation you can build on the basis of if one information is given and reaction is going to complete. सर मुझे ये नहीं समझा आपने ऊपर Na से क्यों मल्टीप्लाई किया सबको? So that we can make mole. We can multiply with some anything. But if I am saying that there is a relation between these is 4:5. हाँ तो 4x and 5x में भी वही relation होगा. That is going to be same. हाँ तो खाली अपने एग्जांपल के लिए Na से मल्टीप्लाई हाँ, किया. so that we can convert into moles. Na से multiply करोगे, when you will multiply molecule with Na, then Number only of you will get moles. mole, na? हाँ. Molecule will convert into mole how? Okay sir. So one mole is having Na molecule, so that's why we are converting. Anyway, it doesn't matter. I'm just saying that 4 molecules are reacting with 5. So you can multiply, you can say 40 will be reacting with 50, 400 will be reacting with 500. ऐसे ही, let's say Na will be 4 Na will be reacting with 5 Na. That's how. So 4 Na क्या होता है? 4 mole. So 5 mole. That's how. So this reaction is called, this relation, not relation, reaction. This relation is called mole-mole analysis. Okay. Now let's say in this part we can solve some questions. Question है, for a complete combustion of for complete combustion of 1 mole ethane, find, ठीक है, A, moles of O2 required, B, volume of O2 required at STP, C, mass of O2 required, ठीक है, 3 questions you have to solve. So once you will get moles, you can convert into volume. From volume and moles, you can also convert into mass. So you have to solve. Complete combustion of 1 mole ethane. Ethane मतलब होता है, what is the ethane? C2H6. Okay, so now you know C2H6 over here is given, and you have to calculate how many moles of O2 is required. Write the balance reaction and solve it.
सो वो सेकंड क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP. ओके। जिन लोगों का आंसर 7 मोल आ रहा है वो आंसर गलत है। 7 मोल। Yes, 3.5 or 7/2 is correct. करेक्ट। तो काफी लोगों के आंसर आ गए। देखते हैं कैसे आया, तो समझ लेते हैं। पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। C2H6 मैंने आपको बोला है कि जब भी कभी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे कंबशन रिएक्शन में, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 into 2 6। अब now you have to calculate how many oxygen are there. So 2 into 2 4 plus 3 कितना हो गया 7। बट ये 7 ऑक्सीजन एटम हुए, हमें चाहिए O2, so we have to divide it by 2 here, so that will be 7/2. Now if you want to write balanced reaction in such a way that you are writing, या तो आप ऐसे लिख लो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 7/2 2 3, ये भी चलेगा, क्योंकि हम केवल रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। अवर एक्चुअल मीनिंग इज नॉट राइटिंग द बैलेंस रिएक्शन, कि हम एग्जैक्टली इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके बिल्कुल उसमें नंबर में कन्वर्ट करें, ये हमारा एम नहीं है। हमारा एम है बस रिलेशन मिल जाए। We want to find a relation between these two. So one is reacting with 7/2. This is okay. If you don't want, you can also write like this: C2H6, because you are going to multiply here. So you will write 2CO7 O2 is going to form 4CO2 plus 6H2. But that time you have to be careful that how many? 2 and 7. This is the relation. So 2 moles react with 7 moles, then 1 mole will be reacting with 7/2. So that is 3.5. So the same thing is there. Again, I have told you what is the objective over here. हमारा मकसद और उद्देश्य केवल यही है कि भाई हमें ये पता चलता है इनके बीच में रिलेशन क्या है। Our intention is to find the relation between these two. That's it. Our relation is not writing a complete balanced reaction over here. So our motive is to finding a relation so we can write in fraction. Doesn't matter. Why I am saying that? Because some student has forget to convert here, so that's why they are getting answer 7. So 2 moles are reacting with 7 moles of O2. So 1 mole will be reacting with 7/2. So I hope this part is clear. है ना? इसमें किसी को, if anyone is having any doubt, they can ask. Hello. बोलो क्या है doubt? Sir, I have a doubt in the last example. 4NaNH3 plus 5Na of O2 gives 4Na of NO2 plus 6Na of H2O. तो सर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो सेम होगा ना? क्यों होगा सेम? वॉल्यूम किसने कहा सेम होगा? वॉल्यूम सेम नहीं होता है क्या? नहीं, मास सेम होता है। ओके ओके फाइन, थैंक यू।
So once you know, build the relation that okay, what is the what are the number of moles of oxygens are going to required, so you can convert into, let's say, volume as well as mass. So ये तो पहला आंसर हो गया. So A is hence moles of O2 required is equals to 3.5. Then volume at STP. So we know number of moles into 22.4. So this is B answer. So that is number of moles is 3.5 into 22.4. You will solve 11.2 into 7. This is solve by yourself 14, 78.4. So that will come 78.4 liter. And third, that mass of O2. So we know that 32 into 3.5, so 16 into 7, so 112 gram. Now, this second relation, we have been given mole, but we are calculating volume. This is called mole volume analysis. This relation is going to be mole volume analysis, because you don't know moles initially. So first you have find moles, then you have converted into volume. So this is from moles we are getting volume. So mole volume analysis. So now 1 mole is, let's say, now we know that 1 mole is going to burn, you need 78.4 liter O2. So now you can build any relation here. 1 mole is going to give 78.4 liter. So we can build any relation over here. We can say, okay, if 2 mole is going to burn, then how many volume of O2 is required? If let's say 0.5 moles are going to be, then how much? So with this relation, you can build any, let's say, any information you can get. So that's why this is called mole volume analysis, and this is called mole mass analysis. Okay. Mole mass analysis means now you know that 1 mole is going to require 112 gram oxygen. So we can write, okay, 0.5 mole is going to require how much oxygen? So 0.5 is going to multiply here. So you can say 56 gram oxygen. So like that, any relation you can build because you have built this relation. मेरी ये बात समझ में आ रही है? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बस ये क्लैरिटी चाहिए कि एक चीज पता है, then we can calculate another thing. Okay, so once we know one thing, we can calculate another thing, because we already know the relation. 1 mole is going to react, then 112 gram is required. Then 0.5 moles, how much is going to require? Now in this question, same question, I'll put one more thing. I want to, let's say, give the initial understanding of these relations. So let's say, rather than in this question, rather than giving moles of ethane, they have given two different things, C. So D. If 15 gram C2H6 is burned, if 15 gram C2H6 is burned, calculate mass of CO2 formed. Mass of CO2 formed. ये D है. And E option क्या है? If 1 liter C2H6 is burned, calculate volume of O2 required at STP.
sorry, volume of O2 required doesn't mean at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. So two more questions are there. I have given mass and I have asked mass. I have given volume, I have asked volume. So mass relation, volume relation. Yes. एक मिनट सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मतलब ई वाले क्वेश्चन के लिए भी C2H6 का मास 15 ग्राम रहेगा? नहीं, वो तो वॉल्यूम दे रखा है ना, मास क्यों रहेगा? नहीं, वो मतलब निकालने के लिए नहीं रहेगा बेटा, वॉल्यूम का मास से रिलेशन डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर। मोल से होता है वॉल्यूम का रिलेशन, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मोल से आप यू कैन कैलकुलेट मास। फिर डी आंसर जो है वो कितना आएगा? सॉरी C2H6 है ना, तो हाँ 44 ग्राम सही है, जिनका 44 आ रहा है सही है। नहीं, अब चलो देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ C2H6 is 1 लीटर। तो लेट्स सी इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हमने कहा कि रिएक्शन हमें पता है ऑलरेडी, C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 CO2 plus 3 H2O। ठीक है, and that's how I know stoichiometry is 1, 7/2, 2, 3। अगेन मैंने बोला ये मैं रिलेशन लिख रहा हूं तो ऐसा चलेगा। ठीक है, अब मुझे इससे क्या पता चला? 1 मोल विल रिएक्ट विद 7/2 moles to form 2 मोल। मुझे क्या चाहिए? मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए CO2 और C2H4 के बारे में, तो मुझे ये मिल गया 1 मोल विल बी रिएक्टिंग विद 2 मोल। The moment I got, I will convert into mass. So 1 mole mass is going to be 30 gram and 2 mole mass is going to be 88 gram. So I can say 30 grams will be giving 88 gram. So 15 gram will be giving 88 divided by 30 into 15. So इससे ये cut 244 and this relation is called mass relation। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कोई ये भी कर सकता था कि जो गिवन मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो 15 डिवाइड बाई 30 कितने हो गए मोल्स? 1/2। आपको रिलेशन पता है कि 1 मोल
1 mole is giving 2 moles. So half mole will be giving 1 mole. Then you will calculate 1 mole mass is going to be 1 into 44, so 44. So any method is okay. Either you have converted 1 mole into mass, here moles into mass, and then you have built the relation, you have written what is going to be answer. Another is you can go opposite. You can convert 15 gram into moles, मतलब ये यहाँ से मोल में गए. So 15 gram is going to be half mole. So now you know the mole-mole relation. 1 mole gives 2 mole, then half mole will give 1 mole. And from here, you can calculate mass of CO2. Whatever you feel like, you can do. ठीक है? हाँ बोलो बेटा. हेलो सर. सर फर्स्ट डी वाला पार्ट है ना, उसमें मुझे एक्चुअली 77 ग्राम आ रहा है. कौन से वाले पार्ट में? डी वाले पार्ट में जो अभी आपने बताया. हाँ, इसमें कितना है? 77 आ रहा है सर. क्योंकि देखो सर मैंने क्या किया, C2H6 अगर 1 मोल है तो वो 30 ग्राम रहेगा, तो मतलब हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है, राइट? कितना फिर से बोलो सर. मतलब C2H6 अगर 1 मोल रहा तो 30 ग्राम रहता है, करेक्ट? हाँ. तो अगर 15 ग्राम है मतलब हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? अगर हाफ मोल रिएक्ट करेगा तो 7/4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ना. तो 7/4 मोल्स. 7/4 कैसे आया? 1/2 मोल्स आया ना 15 ग्राम से. नहीं सर, मतलब अगर देखो 1 ग्राम पे अगर 1 मोल पे 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ रहे तो हाफ मोल पे 7/4 आएगा ना. ये ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है. अरे हाँ समझा सर. सॉरी समझा सर. सर आपको समझ में आया ये सब क्या हो रहा है? सर एक्चुअली मुझे डी वाला नहीं समझा सर. क्या नहीं समझा? मुझे बताते जाओ मैंने क्या बोला है. सर मतलब नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ. कोई बात नहीं, चलता है. आप भी मुझे बताते जाओ कि क्या क्या मैंने बोला था. कुछ भी जो रिकॉल हो रहा है बस वो बोलते जाओ. मतलब हमें पहले तो मतलब हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स निकाले. तो उसके बाद हमने देखा कि 1 मोल में हम लोग को कितना मास मिल रहा है. और फिर हमने फिर 2 मोल का भी मास देखा. तो यहाँ पे इसका मोलर मास होता है 44. CO2 का मोलर मास होता है 44. हाँ राइट. 2 into 44 हो गया 88. चलो फिर. तो फिर हमने देखा कि जब हमने 1 मोल C2H6 लिया तो हम लोग मतलब हमें 2 मोल CO2 मिला. करेक्ट. तो फिर हम जब 15 ग्राम मतलब हम हाफ मोल लेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो देखा हमने. बस यूनिटरी मेथड लगाया. 30 ग्राम लिया तो 88 ग्राम मिला. If we are going to take 15 gram, then how much it is going to be? Unitary method. I have skipped one step. If you want, you can write 1 gram, then 88/30, then 15 gram. Into 15. बस. Okay, sir. तो 44 ग्राम ही आंसर है? Yes. Okay. Thank you. Now you have explained whole the answer. Which part you couldn't understand? This part that 2 mole mass is 88 gram. Yeah, exactly that part वही नहीं समझ रहा था. CO2 molar mass is 44 है ना. So sometime you have to remember molar masses. It will make calculation faster. Yes sir. If you will forget, then you have to again solve CO2 का कितना है. Right sir. ठीक है भाई, ये आ गया हमारा. This is our answer. This relation is called mass-mass relationship. And I have told you that you can convert, let's say you can say, okay, what is going to be number of moles? So 15 gram is given, 15 gram divided by 30, so half mole will come. Okay. And you know the relation, 1 mole reacts with 2 moles, so half mole will be reacting with, so from there, 1 mole reacts with 2 moles, then X mole will be reacting to form 2X moles, then X value is 0.5, so here 2 into 0.5 is 1. This is I am telling to those students who are having or who are facing problems with unitary method. ठीक है.
तो अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील प्रॉब्लम्स इन यूनिटरी मेथड? रेज योर हैंड. कितने लोगों को नहीं आता है यूनिटरी मेथड? चलो एक पोल ले लेते हैं, ठीक है, यस और नो वाला. ठीक है. यूनिटरी मेथड यू अंडरस्टैंड राइट? भाई यूनिट बना के रिलेशन लिखना है. यूनिट का मतलब है 1. यस. हाँ बोलो बेटा. हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप ये यस नो सबके साथ करना. हाँ. अच्छा सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. Okay, still 127 students has given out of 150. So 23 are remaining. I will end after 2 minutes.
Okay. So one thing is, in this poll, 132 people have voted, so that means 18 are absent. They are just logged in. They are not there. Okay, 18 are not there. Okay, anyway. How many people said yes? So only 5 students are getting problems or facing problem. And 95 students said no. So 4% are facing problems, 72% are saying they don't have any problem. And 35 students are saying that occasionally they feel problem. Okay, so whoever is facing problem, for them I will say one more time कि unitary method क्या है, then we will move to this part. Or let's say first finish this part, then we will move to unitary method. So let's see. So if 1 liter C2H6 is burned, तो इसमें एक part और है, and I have to write in mole analysis. So this is the reaction, let's say C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 CO2 plus 3 H2. So remember this part, that C2H6 is going to be gas, O2 is gas, CO2 is gas, but H2O is liquid. Now, so we say that, okay, if stoichiometry is like this, 1, 7/2, 2, and 3. So we can apply volume relation, we can apply volume relation for gases, a gaseous reaction species only. This is very important point. Only for gaseous reaction species you can apply volume relation. Okay. Why? Because we know that according to Avogadro hypothesis, that if, let's say before that we will write mole. So mole relationship is what? 1, 7/2, 2. इसको नहीं लिखेंगे. So we know that from stoichiometry we can write mole relationship. 1 mole is going to react with 7/2 moles of O2 to form 2 moles of CO2. Now, according to Avogadro hypothesis, if two gases are having same number of moles, their volume is going to be same. So let's say if somewhere it is C2H6 is given, somewhere it is O2 is given. So if 1 mole is here and 1 mole is here, both volume is going to be V. This V value is 22.4 at STP, but at different temperature and pressure, this value can be different. है ना? एक मोल का जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर एट एसटीपी है. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है. वैल्यू 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो अभी मैंने लिख लिया V. तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम V है तो भाई 7/2 मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7/2 V. करेक्ट ना? फिर से समझते हैं.
यहाँ से बिल्कुल बिगनिंग से C2H6 ये रिएक्शन दे रखी थी, हमने स्टोइकियोमेट्री निकाल ली, फिर मैंने एक नोट लिखाया कि भाई नोट we can apply volume volume relationship for gaseous species only. So gases are C2H6 ethane gas है, oxygen gas है, CO2 gas है. So we have written mole relationship till here because we want to convert in this mole relationship into volume relationship. Then I quoted कि भाई then I said कि okay, in this container if 1 mole of C2H6 present and 1 mole of O2 is present and both are present at same temperature and pressure, so the both will be having same volume. This was the Avogadro hypothesis. According to Avogadro hypothesis, if volume for any two gases, volume is going to be same if number of moles is going to same, and vice versa. Means if number of moles are same, then volume will be same. If volume is same, then number of moles and molecules will be same. Okay. So if both are having 1 mole, their volume is going to be V liter. And then I said this V value can be anything. At STP, this V value is 22.4 liter. But at different temperature, that's a 300 Kelvin, that's a 2 atm pressure, कुछ और है, तो ये V की वैल्यू कुछ और आएगी. Okay. So 1 mole is having V liter, then 7/2 is going to have 7/2 V liter. तो ये V हो गया, ये 7/2 V हो गया और ये 2V हो गया. ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप. Now if you want to write the ratio, so you can say hence if we are going to cut, so what is going to be there? 1 7/2 2. This is going to be the relationship. You can cut V value because it is a common factor. Now you can write hence we can directly say 1 liter C2H6 reacts with 7/2 liter O2 to form 2 liter CO2. ठीक है, तो जो whatever stoichiometry is given, that is giving the relationship between molecule mole as well as volume relationship. But important thing is only for gases we are having volume relationship. Apart from that, we can have mole and molecule relationship for every type of species, but for gases we are having volume relationship. Okay, so these are the important thing you can keep in mind. ठीक है, we are not going to apply this volume relationship for H2O. तो ये पहले एक बात समझ लो. इसमें किसी को कोई डाउट है, then they can ask. If anyone is facing problem, they can ask. Yes. ये वाटर का हम लोग मास कर सकते हैं ना, मास रिलेशनशिप. हाँ, you can convert mole relationship into mass, then you can write what mass relationship. But this stoichiometry is telling what? एक तो बता रहा है molecule के बारे में directly, because we don't have to convert anything, we don't have to multiply anything. तो one molecule reacts with 7/2 to form 2 molecule, या फिर 1 mole will react with 7/2 moles of to form 2 moles of CO2 and 3 moles of H2 like that. ठीक है, बट जब वॉल्यूम की बात आएगी तो क्या होगा? 1 liter will react with 7/2 liter to form 2 liter. फिर इसके लिए नहीं बोलेंगे हम, we will not say कि 3 liter H2O बन जाएगा. ठीक है. सर मैंने जो ट्राई किया था, मेरे को ये नहीं पता था, तो आप बताइए अगर मैंने राइट किया है कि रॉन्ग मेथड से.
मुझे आंसर 3 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है लेकिन उससे अगर आपने इसको एसटीपी में कन्वर्ट करके किया है तो चलेगा, उसके अलावा कुछ और भी किया है तो गलत है सर। मैंने ऐसे किया कि 1 लीटर है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 0.04 मोल ऑफ इथेन। तो फिर अगर हम लोग को पिछले आंसर से पता है कि 1 मोल कंटेन 78.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.04 में कितने, तो ऐसे आंसर आया। तो ये तो राइट आपने है? एसटीपी ले लिया ना उसको? हाँ हाँ चलेगा। चलेगा ना? तो उसमें आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है इसलिए आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है। हाँ थैंक यू। ठीक है, अब जस्ट ए ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटरी मेथड। तो लेट्स से आपको हमेशा ये करना है कि क्वेश्चन में, जैसे अब मैं यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ ब्रीफ में। So we know that okay, C2H6 and CO2 relation we know. So हमको पता है कि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। गिवन जो भी गिवन है उसको x बनाना है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है that is going to be x, that is the value of x। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन था ये, तो आपने पहले 1 मोल को लिख लिया 30 ग्राम and then you have written 2 into its molar mass 44, so you have written 88। Now you have the relation 30 gram gives 88 gram। Now you have to make whatever information is given information जो है उसको x बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, जिसको x बनाना है उसको ही पहले 1 के रेस्पेक्ट में रिलेशन देखना है। We have to find the relation, so this is going to be 1 gram is going to form, so you will divide by 30 gives 88। then how this one is going to form, so you will divide 30 over here, so you will divide 88 over 30 over here। हमने दोनों को 30 से डिवाइड कर दिया, so this 30 is going to become 1 and then you got 88 divided by 30। so that's why sometime we say कि ये नीचे चला जाएगा। ये नीचे क्यों चला जाएगा? because we are dividing both part by 30, so this 30 is going to become 1। ये पता चल गया आपको? so initial relationship you already know है ना, तो तुम्हें 1 के लिए बन गया यूनिट, एक यूनिट जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को यूनिट बनाना है। देन यू कैन से x के लिए क्या होगा, 88 into 30 into x। ये x कैसे आया होगा? you have multiplied x over here, so you multiplied everywhere, so you multiplied here, so that's why you multiplied here and then you will get 88 divided by 30 into x। तो इसमें जो की पॉइंट रहता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि किसको यूनिट बनाना है किसको x बनाना है, वो है जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप बनाओ और फिर जो x की वैल्यू पता है वो यहाँ पे ऐड कर दो। तो x की वैल्यू आपको पता थी, you will already know what is the value of x, so that is 15 and you can solve। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड जस्ट इन ब्रीफ में है क्योंकि कई बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, आई हैव सीन, एंड फिर आंसर भी गलत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे रहता है ना कि मान लो 1 kg मैंगोज आर ऑफ 250 रुपीज, राइट, एंड दे आर सेइंग कि बताओ 100 ग्राम कितने के आएंगे या फिर 200 ग्राम कितने के आएंगे, तो देन यू विल से 1 is 250 rupees, so 0.2 is going to be here, directly unit method is already there, so x is going to be 250x, x की वैल्यू डाल देंगे 0.2, तो 250 into 0.2, so you'll get the answer। so any relation is already given or you are going to find in the question, you in unitary method this is the one keyword, so you will keep in mind कि आपको यूनिट किसको बनाना है, x किसको बनाना है, जो चीजें गिवन है उसको बनाना है, ठीक है। अगर उल्टा दे रखा होता कि भाई बताओ 11 ग्राम CO2 कितने से मिलेगा, है ना, 11 ग्राम CO2 will be formed by how many grams of C2H6, then we would have made 1 over here, then we would say कि okay we will divide by everything by 88, so that will become 1, so this will be 30 by 88, so we have made 1 here because given information is 11 gram CO2,
So we would have said, okay, 30 divided by 88. This is, so x is going to be 30 divided by 88 into x. And x value is given as 11 gram. So you will put 11 over here. So 30 divided by 88 into 11. So that's how you will say, okay, 30 by 8. And your answer will come 3.7, sorry, 75 gram. So whatever is information is given in the question, that is going to become 1 unit first and then x. Okay, ये हो गया एक brief में unitary method. अब इसमें अगर किसी को देखना है वो पूछ सकते हैं. हाँ सर मैं इसमें डाउट नहीं था सर, आपने जो लीटर में निकाला था ना 3.5 आया था बेटा. अब वो जो हमने बताया था ना वो आपका बात ठीक है, लेकिन ये याद रखना है अभी. ठीक है, अभी हमने ये बात इन्फॉर्म कर दी ना आपको कि इफ वी आर हैविंग स्टॉकियोमेट्री, तो जो स्टॉकियोमेट्री का रिलेशन होगा वही वॉल्यूम का रिलेशन होगा. आपको उसको एसटीपी में मत कन्वर्ट करो. ठीक है, तो सर मेरे को वो कट जाएगा. जहां पे भी एसटीपी लिखोगे ना, जैसे मान लो आपने इसको लिखा 22.4 लीटर, तो यहाँ पे भी लिखोगे 7/2 into 22.4 लीटर. 22.4 is going to cut. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसटीपी में डू नॉट कन्वर्ट इट. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये. सर इसके मेरे को 3.449 आया. कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसके कारण आया. ठीक है, चलो. हेलो सर. हाँ सर मुझे यूनिटरी मेथड तो समझ में आती है, सब आगे का समझ में आता, पर वो जो आपने पहले लिखा है ना 1 मोल इज इक्वल टू 30 ग्राम, वो नहीं समझा सर. इसका मोलर मास 30 है बेटा. अच्छा ओके, ओनली मोलर मास निकला. ओके सर.